I'm reading the problem, so all of you pay attention. From the following trial balance of Messrs. Nitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Stock as on 1/4/2018. So dear students, stock, this is opening stock. So opening stock will go to trading account, trading debit side, बराबर है? So opening stock, trading account, debit side. Then we have building. So building will be assets. So building assets. Then we have carriage. Now in the previous sum we have seen ki whenever there is carriage, only carriage, we take it to trading account. Is that clear? So we'll be taking it to trading account. Okay. सिर्फ कैरेज रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो हमने देखा था. So similarly here also only carriage is there, so we'll be taking it to trading account. Then come factory insurance. Factory insurance will be trading, क्योंकि वो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है. They have specified it factory insurance. Any expenditure which is related to factory will be taken to trading account. ये हमें याद रखना है. Is that clear? Then postage P&L में जाएगा. So postage will be P&L. I hope this is clear. Postage के बाद bills receivable. Bills receivable will be assets. Bills receivable के बाद debtors will be assets. Now return inward. Now this is which return? ये डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब this should be deducted from credit. तो ये कहां से डिडक्ट होगा? ये सेल्स से डिडक्ट होगा. So this is sales return. So माइनस होगा ये सेल्स से. So this is nothing but your sales return. So I am putting a tick mark on sales. Is that clear? Sales return है. Then purchases है. Purchase will be trading account. Then audit fees P&L. And in this sum we have loose tools. So loose tools are none other, we will be taking it to assets. So loose tools assets. Manufacturing expenses. Now this is the first time जब manufacturing expenses आ रहा है. Manufacturing expenses will again be taken to trading account. So any expenditure which is related to manufacturing or factory will be taken to trading account. Electricity charges P&L. Then general expenses P&L. एक्सपोर्ट ड्यूटी भी P&L में आएगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग में आता था. वॉट एवर वी आर परचेसिंग, व्हेन वी आर परचेसिंग एंड वी आर एक्सपेंडिंग समथिंग, तो ट्रेडिंग में आएगा. एक्सपोर्ट मतलब हम सेल कर रहे हैं, सो दिस इज लाइक अ सेलिंग एक्सपेंस, सो इट विल बी इन P&L. देन कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स, कन्वेंस P&L, फर्नीचर एसेट, सैलरीज P&L, rent rates and taxes P&L, drawings. Now in this sum we have drawings, and drawings will be partners current account या capital account, that we have to check. तो चला credit side में देखते हैं. Before writing, see we have capital account as well as we have current account. Is that clear? Of the partners. That means when we have both the capital as well as current, उसका मतलब capital fixed है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कौन सा वाला अकाउंट बनाता है? कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि करंट हम करंट अकाउंट बनाएंगे. सो वी विल बी टेकिंग दिस टू पार्टनर्स अकाउंट. सो डू रिमेंबर, सो ड्राइंग्स विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट. देन ऑन द क्रेडिट साइड, sundry creditors will be liability, sales will be trading, capital account will be partners capital account, sorry, partners capital account बोल रहा हूँ, let me correct it. Capital are fixed and it will be directly going to liability. Then comes outstanding salary. मैंने बोला था outstanding जब भी ट्रायल बैलेंस में आता है, you have to only pass single effect and that single effect will be liability. Outstanding salary liability में डायरेक्टली जाएगा, सिंगल इफेक्ट ही आएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में आया है. Then bills payable liability, return outward, क्रेडिट में जो रिटर्न आया वो डेबिट में से माइनस करेंगे, तो ये लेस फ्रॉम परचेसेस करने वाले हैं. दिस इज नथिंग बट योर परचेस रिटर्न, और जाके परचेस को टिक मार्क कर रहा हूं. एंड देन कम्स करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट के लिए हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट
क्रिएट करेंगे ये सब में. So this partners balance will go to partners current account, और क्रेडिट में है तो it will go to credit side of partners current account. So let's see the adjustments for this sum. First, they have given Mitesh and Mangesh are sharing profit and losses in the ratio 3:1. So dear students, here what you have to remember, the profit sharing ratio is 3:1. ठीक है? Then partners are entitled to a commission. So in this sum we have to give commission to partners. So do remember dear student, commission partners को देना at the rate 1% each. Each मतलब दोनों को भी. For example, मितेश को भी 1% देना है, मंगेश को भी 1% कमीशन देना है. And किसका? Of gross profit. So your partner should be entitled a commission at the rate of 1% on gross profit. This is what you have to remember. तो पार्टनर्स कमीशन का डबल इफेक्ट हमें पास करना है. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? पार्टनर को कमीशन देना है, सो इट इज आवर एक्सपेंस, यानी वो आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट. एंड सेकंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम उसे कहां पे लेके जाएंगे? सो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम उसे क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे. तो दिस आर द टू इफेक्ट्स ऑफ योर कमीशन. देन कम्स द closing stock is valued at 23,700. Now dear sir, closing stock का डबल इफेक्ट अपने को आता है. आई एम नॉट राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट क्योंकि वो हमें आ रहा है अभी. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमें पता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्या करने वाले हैं? ऐड करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंस में और लायबिलिटी में लेके जाएंगे. सो लेट्स चेक किसको किसको ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस है और कैरियज है. सो दोनों को टिक मार्क करते हैं. ऑडिट फीस और कैरियज. ऑडिट फीस यहाँ पे है, सो लेट अस टिक मार्क ऑडिट फीस एंड कैरियज. सो ऑडिट फीस एंड कैरियज को हमने टिक किया. देन कम्स बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. नो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हमें आ रहा है. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ये भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका दिया है ना. हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विद दिस एडजस्टमेंट वो हम देखेंगे, लेकिन हम बिल्डिंग को टिक मार्क कर रहे हैं. सो बिल्डिंग शुड बी वैल्यूड एट 46,500. सो आई एम गोइंग टू पुट अ टिक मार्क ऑन बिल्डिंग. ठीक है? सो बिल्डिंग को 46,500 पे वैल्यू कर रहा है. नाउ वी विल बी सीइंग हाउ टू डू द एडजस्टमेंट व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग द सम. देन फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%. चलो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है, फर्नीचर से लेस करना है. So I'm putting a tick mark on furniture. So furniture को less करना है. Then provide interest on partners capital at 2.5% per annum. So dear student, in this sum also we have to give interest on partners capital. So partners capital का interest हमने last time भी देखा था. What are the two effects of interest on partners capital? पहला आएगा, हमको देना पड़ता है partners capital के ऊपर interest. तो कुछ भी चीज देना पड़ता है, it is an expense. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. एंड ये स्टूडेंट पार्टनर्स को दे रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने वाला है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? देन दे हैव गिवन गुड्स ऑफ ₹900 were taken by Mangesh for his personal use. This is good withdrawn by your partner. पार्टनर का दो इफेक्ट हमें आता है, हमने पहले भी किया है. Yes, sir. For goods withdrawn by partner is trading account credit side and balance sheet. Trading account credit side में and not balance sheet. In this sum partners current account के debit side में as drawings. Okay, so I'm not writing the adjustment क्योंकि ये adjustment अभी आ रहा है हमें, हमने बहुत बार किया है इसे. Then right of bad debt, right of ₹1,000 as bad debt. अब bad debts अगर यहाँ पे आया है तो कौन सा bad debt है? This is called as new bad debt. Bad debt का हमें एंट्री करना है. और अगर यहाँ पे न्यू बैड डेट के बाद बोला मेंटेन आरडीडी, ये कौन सा वाला आरडी है? दिस इज नथिंग बट न्यू आरडी. ओके, एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स. एंड yesterday you know both these adjustments, how they are to be done. For both this adjustment we will be deducting from debtors. So that is our first adjustment, less from debtors, and then we will be taking it to the formula, that is adding it to bad debts. I hope you all know this. Is that clear? So let's see deducting it from debtors. So we have to put a tick mark on debtors. दो adjustment है, so दो tick mark debtors पे डालने हैं. So एक tick mark and दूसरा tick mark. So two tick marks on debtors.
then dear students we have to add it to bad debts. So bad debts check करते हैं कहीं है क्या. So अगर आपको याद है तो हमने पूरा डेबिट साइड जब पढ़ा था हमें कहीं भी bad debts नहीं मिला था. So there is no bad debts dear students, but still we have to add this both things. So what we will be doing, we will be writing the formula and then we will be adding. वो देखेंगे हम लोग कैसा करने का. But there is no bad debts right now in your trial balance. I hope this is clear. So this is what you have to do. Now dear student, in this sum again we have to draw partners current account and the name of the partner is Mitesh and Mangesh. So let me change the name of the partners and the year ending is 31st March 2019. So year ending is going to remain the same. I'm going to change the name of the partners and that's going to be Mitesh and Mangesh. So let's begin. So partners current account, again we have to draw in this some partners current account. So current account ही है, so I'm not changing it. So let's begin. So firstly we have opening stock 25,000. Opening stock trading account में 2 opening stock will go to outer column 25,000. So opening stock. Opening stock के बाद next है building. So building 48,500, but building has got a tick mark. So asset side में building 48,500. आउटर कॉलम में नहीं टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिख रहा हूं 48,500 एंड इनर कॉलम में जैसा ही लिखूंगा एक लाइन छोड़ के आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है. सो दिस इज फॉर एडजस्टमेंट ऑन बिल्डिंग. देन आफ्टर बिल्डिंग वी हैव कैरियज. अगेन वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन कैरियज. ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1780. सो कैरियज ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ फॉर राइटिंग परचेसेस. सो उसके नीचे लिखता हूँ टू कैरियज. We have an adjustment 1780. Okay, so inner column में लिखा है एक लाइन छोड़ के I'm going to draw a line for that adjustment. Then factory insurance don't have an adjustment 2,700, so I'm straight away going to write 2 factory insurance. $2,700. ठीक है. फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट वी हैव पोस्टेज. सो पोस्टेज 1,600. पोस्टेज आई एम गोइंग टू राइट इन P&L. 2 postage. आउटर कॉलम 1,600. देन पोस्टेज के बाद वी हैव बिल्स रिसीवेबल. एसेट साइड में जाएगा 13,700. सो बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में लिख रहा हूं लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जगह रख रहा हूं. सो बिल्स रिसीवेबल आउटर कॉलम 13,700. बिल्स रिसीवेबल 13,700 ही है ना. या 13,700. देन वी हैव डेटर्स. अगेन डेटर्स विल गो टू एसेट साइड 52,200 and we have 2 tick mark on debtors. So debtors 52,200 and 2 tick mark on debtors. So chalo let us write debtors. 52,200 पड़ा था ना, and we have 2 tick mark. So this is for first adjustment and second adjustment के लिए we will be leaving 2 lines. Okay, one for totaling and one for the second adjustment. ठीक है. डेटर्स का वैल्यू कितना था जरा चेक करते हैं. 52,200 था ना. या डेटर्स 52,200. Then we have carriage inward. Carriage inward, this is to be deducted from sales. तो सेल्स क्रेडिट में लिख के उसको डिडक्ट करता हूं. चलो 1,600. So I'm going to write it by sales. सेल्स का वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा, उसमें से लेस करता हूं. रिटर्न्स inward 1,600. So I'm putting it in a bracket
1600. I have to deduct it. ठीक है? And yes, so I'm going to draw a line on it. So जब भी sales आएगा, we will be deducting it and we will be writing it. Then dear students, we have after this thing we have purchases. चलो purchases we will be writing it on the debit side. So 2 purchases. ठीक है. So 2 purchases, I'm going to write it in the inner column. So the value for purchases given to us is 68,900. ठीक है. Inner column में 68,900 purchases, and then we are going to draw a line on it. Leave a space for adjustment. So this is purchases. Purchases के बाद we have audit fees. Audit fees 1,800. We have a tick mark on that. तो audit fees दिख रहा हूँ. 2 audit fees. $1,200. लाइन ड्रॉ करो. लेट्स चेक 1,200 है क्या? सॉरी 1,800 है. So audit fees we are going to write 1,800. ठीक है. Then audit fees के बाद the next thing that we have is loose tools. Now loose tools asset side में 32,000. चलो loose tools asset side में $32,000 loose tools. Then after loose tools we have manufacturing expenses trading account में 1,820. So 2 manufacturing expenses. $1,820 outer column. Then after manufacturing expense electricity charges P&L में 2,600. So 2 electricity charges. $2,600 electricity charges. Then after electricity charges we have general expenses 3,400. So 2 general expenses. $3,400. After general expenses we have export duty 1,000. So 2 export duty. $1,000. ठीक है. Then export duty के बाद we have cash in hand 75,000 and bank balance 29,000. चलो cash in hand we have 75,000. Outer column 75,000 and bank balance 29,000. This is what we have: cash in hand and bank balance 79,000 and 29,000. Then we have conveyance again P&L 4,100. So to conveyance $4,800. P&L में आएगा conveyance 4,800. Sorry 4,100 है. So let me correct this. 4,100 conveyance. Then conveyance के बाद we have furniture 64,000 asset side में. So let us write down furniture 64,000. So 64,000 furniture on the asset side. एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. Then after furniture, next thing that we have is salaries. Salaries P&L में आएगा 2,000. So 2 salaries.
2000 P&L में. Then salaries के बाद next is rent rates and taxes. So 2 rent rates and taxes. So rent rates and taxes का value कितना था जरा चेक कर लेते हैं एक बार. So rent rates and taxes 3700. ठीक है. Then we have drawings and drawings will go to partners current account debit side. So Mitesh का 1200, Mangesh का 2200. So drawings, 2 drawings. $1,200 and $2,200 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. So 1,200 and 2,200, 1,200 and 2,200. I hope this is clear of Mitesh and Mangesh. So this is your debit side of trial balance. Let's move on to the credit side. So we have sundry creditors that are 38,000. So chalo, let's write creditors 38,000. But creditors लिखते समय you have current account as well as capital account. So dear students, do remember यहाँ पे 3 लाइन आएगा, फिर 3 लाइन current capital लिखने के लिए भी आएगा, and then after leaving space I'm going to write creditors. Value of creditors was 38,000. चलो creditors outer column में I'm going to write 38,000. creditors के बाद next है bills payable था ना, नहीं. creditors के बाद next sales है 1,75,000. We have already written the value of sales. चलो let us write down the amount 1,75,000 sales, and dear student minus करना है and outer column में लेके जाना है. So 1,75,000 minus 1,600. So that's going to be 1,73,400. That's going to be your net sales after deducting your returns from that. Okay. Then we have capital account. Now this is a fixed capital method. So capital account will directly go to liabilities. Mitesh 1,50,000 and Mangesh 50,000. So let's take partners capital directly to liability. Mitesh 1,50,000 and Mangesh 50,000. So total is 2 lakhs. Total capital is 2 lakhs of Mitesh and Mangesh. This is fixed capital and we have directly returned it to partners balance sheet liability side. Then after capital we have outstanding salaries. Trial balance में आया तो single effect, liability में जाएगा. So let us write down outstanding salaries भी liability में आएगा 2,000 और bills payable भी liability में आएगा 18,000. तो दोनों भी लिख लेते हैं. Outstanding salary, bills payable 2,000 and 18,000. So first outstanding salaries. $2,000. Then we have bills payable. $18,000. Both are to be taken to liability side. So this is done, and then we have return outward. Now this is nothing but your purchase return. You will be deducting it from purchases 1,800. So less returns outward. So bracket में 1,800. चलो let's deduct 1,800. So 68,900 में से 1,800 deduct करते हैं. So in outer column it will be 67,100. Okay. 100. ठीक है. चलो 67,100. That's your return outward, and afterwards we have current account. So current account के लिए current partners current account बनाया हमने, and credit side में balance है. मैंने आपको last sum में बोला था whenever partners current account आएगा तो debit में भी balance आ सकता है, credit में भी balance आ सकता है. You have to check where to write. तो ये सब में credit side में ही है दोनों का भी balance. So we are going to write on the credit side of partners current account. Mitesh का balance कितना है 3,000 and 2,000.
सो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. अगर बाय चांस डेबिट में होता था तो हम डेबिट में लिखते थे, वो हमें याद रखना है. बैलेंस कैरिड डाउन 3000 and 2000. So this is partners. brought down एक मिनट brought down. हाँ, ठीक है. So this is your trial balance. Let's move on to adjustment. Mitesh and Mangesh are sharing profit and losses in the ratio 3:1. Profit sharing ratio तो हम profit आने के बाद चेक करेंगे, वो हम बाद में करेंगे. So second adjustment, ये इंफॉर्मेशन है जो हम बाद में यूज करेंगे. Second adjustment दिया है, partners are entitled to get commission at the rate of 1% on gross profit. Now dear students, can we do this adjustment right now? No, we cannot. The reason being, for doing this adjustment, first we have to have gross profit. बराबर है. ग्रॉस कब मिलेगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, ये एडजस्टमेंट, इवन दो दे हैव गिवन दिस एडजस्टमेंट फर्स्ट, बट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दिस एडजस्टमेंट राइट नाउ. सो वी विल बी डूइंग दिस एडजस्टमेंट लेटर ऑन. आई होप दैट्स क्लियर. तो ये एडजस्टमेंट को मैं स्टार मार्क करके रख देता हूं. ये एडजस्टमेंट हम बाद में करने वाले हैं, क्योंकि अब हम नहीं कर पाएंगे एडजस्टमेंट, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है. क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700. क्लोजिंग स्टॉक अपना प्यारा एडजस्टमेंट, सबका प्यारा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 23,700. एंड सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? सेकंड इफेक्ट 23,700 का बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक. $23,700. I hope this is clear. ये फेवरेट एडजस्टमेंट है सबका. उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरियज 600. चलो आउटस्टैंडिंग हमें पता है, वी हैव टू ऐड आउटस्टैंडिंग. ऑडिट फीस को 400 ऐड करना है, कैरियज को 600. चलो ऑडिट फीस पीएनएल में है, लेट्स ऐड 400 एज आउटस्टैंडिंग. $2,200. Okay, good, very good. 2,200. ठीक है. This is outstanding 400 we have added to audit fees, और कैरेज को भी ऐड कर रहा हूं. ऐड आउटस्टैंडिंग. सो दोनों को पहला ऐड कर रहा हूं. कैरेज को भी कितना बोला था उन्होंने? 600 ना. कैरेज को 600 ऐड करने बोला है. सो कैरेज में 600 ऐड किया. 2,380. So this is going to be 2,380. Is that clear? Now this is the single effect. हमने दोनों को भी ऐड कर दिया. एंड दोनों को जैसे ऐड हो गया, we will be taking the second effect to liability side of balance sheet. Okay? So चलो liability side में लिखते हैं outstanding. Outstanding audit fees है. So outstanding audit fees 400, and then outstanding carriage 600. ठीक है. So this is the second effect for outstanding expenses. I hope this is clear. ये सब अभी आता रहेगा आप लोगों को. Then the next third adjustment, ये नया है अपने लिए. Next adjustment जो हम कर रहे हैं, building is valued at 46,500. ये जब भी valued बोलते हैं ना, तो बिल्डिंग का वैल्यू हमें उतना करना है. 46,500 बिल्डिंग का वैल्यू करना है. सो लेट अस चेक बिल्डिंग का वैल्यू है कितना. सो बिल्डिंग का वैल्यू है 48,500, लेकिन वो लोग हमको बिल्डिंग का वैल्यू कितना करने बोल रहे हैं? 46,500. तो जितना भी वो लोग वैल्यू करने बोलेंगे उतना हम आउटर कॉलम में लिखेंगे. याद रखना, वो लोग हमको बिल्डिंग करने बोल रहे हैं 46,500 का. Is that clear? So at the end of the year, that means as on balance sheet date, they are asking us to value building at 46,500. उसका मतलब क्या आता है? अगर बिल्डिंग को 46,500 करना है, तो बिल्डिंग में से हमको ऐड करना पड़ेगा बिल्डिंग में कि लेस करना पड़ेगा? सो हमें लेस करना. और कितना लेस करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? सो वी 2,000. अमाउंट ऑफ 2,000. ओके.
and whatever amount we are deducting from fixed assets, what we call it as less करना है, we call it as depreciation. So this is the way we will be calculating depreciation for this kind of an asset. Is that clear? So जो भी amount हम less करते हैं fixed asset में से, we called it as depreciation. तो यहाँ पे 48,500 was the amount of building, लेकिन उन्होंने बोला 46,500 करो, so you have deducted a value of 2,000 and that value is called as depreciation. I hope this is clear. Okay, so depreciation का second effect will be taking to P&L, depreciation on building. और एक डेप्रिसिएशन है ना, सो एक काम करता हूं, मैं डेप्रिसिएशन को कॉमन लिखता हूं और उसके नीचे लिख रहा हूं बिल्डिंग पहला. आप सेपरेट भी लिख सकते हो या इनर आउटर कॉलम में भी कर सकते हो. एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन वी हैव कैलकुलेटेड 2000, सो आई एम राइटिंग इट इन द इनर कॉलम बिकॉज वी हैव वन मोर डेप्रिसिएशन टू गो. एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज फर्नीचर, बट फर्नीचर का डेप्रिसिएशन उन्होंने 5% बोला है. सो चलो फर्नीचर के ऊपर नॉर्मल जैसा हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वैसा करेंगे. लेस डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है उन्होंने एट द रेट 5%. So I hope all of you know how to calculate 5% now. Okay, 5% of कितना 64,000. So let us calculate over here itself. 64,000 is the value of your furniture. 64,000 is the value of your furniture, and you have to calculate 5% of 64,000. So into 5 upon 100. This is how you are going to calculate 5%. So चलो यहाँ पे 2 0 cancel, 2 0 cancel. So dear sir, you have to multiply 640 into 5. So 640 into 5 तो 5 zeros are 0, 5 fours are 20. So 0 2 carry, 2 carry जाएगा. And 5 6 are 30, 30 plus 2 32. So how much this is going to be? 3,200. Is that clear? So depreciation at the rate of 5% is going to be 3,200. चलो लेस करते हैं, तो 64,000 में से 3,200 लेस करेंगे, so we will be arriving at 60,800. That's going to be your depreciation on furniture. And the second effect of depreciation on furniture will be taken to P&L account. We have already written depreciation. उसमें लिख रहा हूं furniture. एंड इनर कॉलम में 3,200 दोनों का टोटल करते हैं, एंड दोनों का टोटल करके आउटर ले जाते हैं. द टोटल इज गोइंग टू बी 5,200. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई हैव रिटन डेप्रिसिएशन. आप सेपरेटली भी लिख सकते हो. बिल्डिंग को सेपरेटली 2,000 आउटर कॉलम में डालो, फर्नीचर को सेपरेटली 3,200 डालो, तभी भी वो टोटल में 5,200 ही हो जाएगा. इज दैट क्लियर? So this is depreciation, and after depreciation we have to provide interest on partners capital at the rate of 2.5% per annum. So last sum में we have calculated interest, ये सम में वापस कैलकुलेट करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, 2.5% है, याद रखो. सो दो पार्टनर्स है, उनका कैपिटल कितना है वो कहां से चेक करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट में नहीं है उनका कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, हमने करंट अकाउंट बनाया है. कैपिटल किधर है? उनका कैपिटल यहाँ पे है, लायबिलिटीज में. लायबिलिटी 1,50,000 और मंगेश का कैपिटल 50,000. तो दोनों का कैपिटल दिया है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट 2.5% ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो इधर नीचे वर्किंग नोट कर रहा हूं. So let's do the working note. Interest on partners capital 5%. So 1,50,000 into 2.5. That's going to be divided by 100. That's going to be 3,750. And this is 500 into 2.5. चलो 500 1,250 into 2.5 करते हैं. 500 into 2.5 करेंगे तो 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25. And 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10. So this is going to be 0, 0, 5, 2, 1. और एक नंबर बाद पॉइंट है, तो एक नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट डाल के इसको कट कर देंगे. So the answer is going to be 1,250. So now we have the interest on both partner. Is that clear? So interest, नितेश को interest on capital देना है 3,750.
एंड मंगेश को इंटरेस्ट देना है 1250. ठीक है, सो 3750 एंड 1250. लेट्स राइट डाउन इंटरेस्ट का एंट्री नाउ. इंटरेस्ट का एंट्री किधर आएगा? पार्टनर्स का इंटरेस्ट देने का एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. And then we have to write the name of the partners. मितेश, इनर कॉलम में मितेश का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 3750. एंड देन सेकंड पार्टनर मंगेश, तो मंगेश का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 1250. चलो दोनों को टोटल करते हैं. So 3750 and 1250 is going to be 5000. So 5000 is the total interest. I hope this is clear. This is first effect of interest on capital, and the second effect will go to partners current account के credit side में. Partners current account के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. This is 3750 and 1250. I hope this is clear. This is interest on partners capital. Then we have goods of rupees 900 were taken by Mangesh for personal use. Chalo, Mangesh have taken the goods for personal use. So this is nothing but your drawings. So first effect for goods taken will be by goods taken by Mangesh. And what is the value of goods taken? 900. So Mangesh have taken a goods of 900, and the second effect will be partners current account के debit side में two drawings. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ goods है, goods लेके गया ना, so I'm going to mention this as goods. एंड मंगेश लेके गए तो मंगेश के नाम पे लिखना है 900. ये बी केयरफुल, मितेश के नाम पे मत डालो, मितेश ने नहीं लेके गए, सो मितेश के वहां पे कुछ नहीं आएगा, मंगेश के यहाँ पे डायरेक्ट लेगा. मितेश के यहाँ पे लिखना है तो यू कैन पुट अ डैश. मितेश नहीं लेके गए, मंगेश लेके गए. आई होप दिस इज क्लियर. देन राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD at 3% on debtors. चलो bad debts and debtors we have to deduct it from bad debts है, and RDD we have to deduct it from debtors. 1000 and 3%. चलो पहला बैड डेट्स करते हैं, न्यू बैड डेट. सो लेस. सर बोला पार्टनर्स कॅपिटल चे इथे तुम्ही मंगेशच्या जागी 9000 लिहिलंय का 900? 900 ट्रेडिंग है ना, तिथे 900 लिहिलंय आणि 900 पार्टनरच्या आहे ना? इथे 9000 लिहिलंय. कुठे? मगाशी सध्या पार्टनर्स मगाशी करंट लिहिलंय. अकाउंट मध्ये 9000 लिहिलंय आणि कुठे लिहिलंय ट्रेडिंग 9000 हे बघ. 900 गेलं सर ते. सर गेलं. हा लेस बैड डेट्स. सो न्यू बैड डेट्स लेस करना है. न्यू बैड डेट्स 1000 है, सो लेस करना है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1000. ठीक है, एंड आफ्टर डिडक्टिंग वी आर राइटिंग 51200. ठीक है, सो आफ्टर डिडक्टिंग 51200 न्यू बैड डेट. सेकेंड इफेक्ट हम बाद में लेके जाते हैं, और लेस भी करना है हमें. और एक चीज लेस करना है, न्यू RDD. न्यू RDD वी हैव टू कैलकुलेट इट एट द रेट ऑफ 3% बोला है. सो विल बी कैलकुलेटिंग न्यू RDD किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 3% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितना है? 51200. सो विल बी कैलकुलेटिंग न्यू RDD ऑन 51200 का 3%. So I'm going to calculation over here 51200. This is value of debtors.
उसके ऊपर न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है 3%, सो 3/100 अपॉन 100 है तो वी आर गोइंग टू कैंसिल द जीरोस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 512 into 3, मल्टीप्लाई करते हैं 1536. 512 into 3 कर रहा हूं, आप लोग ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। सो द आंसर इज 3 2 6, 3 1 3 and 3 5 1536. 1536 is going to be your RDD. Is that clear? Sir, 1536. हाँ, 1536 is going to be your RDD. So let's करते हैं 1536. 49,664. So this is going to be how much? 51,200 में से 1536 लेस करते हैं, so that is going to be 49,664. I hope this is clear. Okay. Now, dear student, we have to provide the second effect for both of this. So new RDD और new bad debt, new RDD दोनों का second effect PNL में आता है, हम bad debts के फॉर्मूला में लिखते हैं, बट bad debts का फॉर्मूला है नहीं। बैड डेट्स का फॉर्मूला है क्या डियर स्टूडेंट्स? नहीं है। सो नहीं है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख के भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 न्यू बैड डेट्स, या तो हम फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं 2 बैड डेट्स। फॉर्मूला क्या है? बैड डेट्स, बट बैड डेट्स में कुछ भी नहीं है, सो डैश। फिर बैड डेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एड। So I am writing the whole formula, add new bad dates, and new bad dates हमको पता चला है new bad date 1000 है, ठीक है। new bad date के बाद क्या आएगा? add न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी भी हमने कैलकुलेट किया है। न्यू आरडीडी वॉज कितना? 1000। कितना कैलकुलेट किया था हमने? 1536। 1536 न्यू आरडीडी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रहेगा फॉर्मूला में, जैसे हम न्यू आरडीडी लिखने के बाद हम टोटल करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टोटल दिस। टोटल इज 2000। कितना आएगा टोटल बताओ मुझे? टोटल इज गोइंग टू बी 2500। उसके बाद आपको याद रहेगा टोटल करने के बाद हम लेस ओल्ड आरडीडी करते हैं नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, लेस ओल्ड आरडीडी, बट वी डोंट हैव ओल्ड आरडीडी। ना होने के कारण हम लोग ओल्ड आरडीडी के यहाँ पे भी डैश डाल देंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर ये डैश है यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेस करने के लिए, तो आउटर कॉलम में भी स्ट्रेट अवे कितना जाएगा? 2536 का फॉर्मूला का टोटल, जिसमें दो चीज नहीं था, ना बैड डेट्स है ना ओल्ड आरडीडी, तो दोनों में डैश डाल दिया, बट आई हैव रिटन द होल फॉर्मूला एंड आई हैव टेकन द वैल्यू एज 2536। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो वी हैव डन विद दिस। अब एक एडजस्टमेंट खाली हमारा बाकी है, वी हैव टू प्रोवाइड 1% ऑफ कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, बट दिस एडजस्टमेंट कैन ओनली बी डन आफ्टर अराइविंग एट ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो चलो लेट्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है, देखो डेबिट में कम अमाउंट है, क्रेडिट ही हमें बड़ा दिख रहा है। सो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं पहला। 19,800. 1,73,400 प्लस 23,700 प्लस 900 कितना आ रहा है? 1,98,000 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। 1,98,000। The same 1,98,000 I am going to put it on the debit side, 1,98,000, and I am going to go the for debit ka total. So debit ka total is going to be 25,000 plus 67,100 plus 2,380 plus 2,700 plus 1,820. So that's going to be 99,000. बराबर है? So 99,000 आया हमको डेबिट का टोटल। So डेबिट का टोटल है 99,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,98,000। सो 1,98,000 में से 99,000 को लेस करेंगे, और मुझे बताओ 1,98,000 में से अगर 99,000 को लेस किया तो आंसर कितना आएगा? आंसर 99,000 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों हाफ है।
99,000 is the half of 1,98,000. So हमारा आंसर 98,000 99,000 ही आएगा. So balancing figure is going to be 99,000 and this balancing figure 99,000 sir. बैलेंसिंग फिगर को मैं सर्कल करता हूं और ये बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या कहूंगा? विल बी कॉलिंग दिस एज 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ठीक है, this is 99,000 and I'm going to bring it down to P&L. So by gross profit brought down, outer column 99,000. I hope this is clear. लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हमको पार्टनर को कमीशन देना है. इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट हमारे एक एडजस्टमेंट रह गया था, याद है? ये एडजस्टमेंट के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव कमीशन टू पार्टनर्स. तो चलो यहाँ पे डेबिट में आएगा 2 कमीशन टू पार्टनर्स एंड पार्टनर्स को देना है कमीशन. सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ईच पार्टनर. सो पार्टनर में सबसे पहला नाम है मितेश. सो मितेश को कमीशन देना है एंड देन मितेश के बाद है मंगेश और दोनों भी पार्टनर को 1% देना है. 1% किसका बोला है उन्होंने? 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. सो लेट अस कैलकुलेट कमीशन. सो कमीशन इधर बाजू में कैलकुलेट करते हैं. सो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कमीशन क्लियरली बोला है उन्होंने कमीशन कैसे कैलकुलेट करने का. पहला मितेश. सो ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट इज 99,000. सो ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 का कितना परसेंट बोला है? 1%. सो इंटू 1/100. 1% इज 1/100. ये 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल. सो दिस इज गोइंग टू बी 990 इंटू 1. तो 990 आएगा कमीशन मितेश का. और मंगेश को भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का परसेंटेज सेम है. तो मंगेश के लिए भी कितना कमीशन आएगा? फॉर मंगेश ऑल्सो द कमीशन इज गोइंग टू बी 990. आई होप दिस इज क्लियर. सो बोथ द पार्टनर्स विल बी हैविंग सेम कमीशन. तो चलो लेट अस राइट डाउन पार्टनर्स कमीशन 990 एंड 990. ठीक है, और फिर दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाता है कमीशन का. सो 990 एंड 990 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1980. I hope this is clear. This is first effect. Partners commission का ये first effect है. Second effect of commission will go to partners current account के credit side में by commission. For Mitesh it is 990. For Mangesh also it is 990. I hope this is clear. Understood all of you? ठीक है, चलो उस Yes. हम लोग P&L को क्लोज करते हैं. P&L में हम देखेंगे डेबिट साइड में बहुत सारे आइटम्स हैं लेकिन टोटल तो क्रेडिट का ही बड़ा दिख रहा है. क्रेडिट में एक ही आइटम है लेकिन उसका अमाउंट 99,000 का है और डेबिट में बहुत सारे आइटम्स भी हुए फिर भी वो 99,000 तक तो नहीं पहुंच रहे. इज दैट क्लियर? सो डियर अगेन क्रेडिट इज मोर. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया मुझे, सो आप लोग एडजस्ट कर लेना. 99,000 इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एंड इधर भी आएगा, डेबिट में भी आएगा 99,000. इज दैट क्लियर? लेट अस कैलकुलेट इट फॉर डेबिट. सो डेबिट का टोटल करें. डेबिट के अमाउंट का टोटल है 1,600 प्लस 2,200 प्लस 2,600 प्लस 3,400 प्लस 1,000 plus 4,100 plus 2,000 plus 3,700 plus 5,200 plus 2,536 plus 1,980 plus कितना आया? 30,000. 34,316. 34,000 आ रहा है. 316.
मुझे S 30,316 आ रहा है, मुझे आ रहा है 30,316। 34,316. एक बार वापस चेक करते हैं। 1,600 प्लस 2,200 प्लस 2,600 प्लस 3,400 प्लस 1,000 प्लस 4,100 प्लस 2,000 प्लस 3,700 प्लस 5,200 प्लस 5,000 प्लस 2,536 प्लस 1,980। कितना बोलता? अभी मुझे और भी अलग आ रहा है। किसी और को टोटल आया क्या? 35,316. 35,316. हाँ, अभी आ रहा है 35,316 का। 31,000. So I think my total is 35,316. ठीक है, बाकियों को भी ये आया क्या? 1,000 जिसको 30,316 आया था उनके लिए वो रॉन्ग था टोटल। So 1,600 प्लस 2,200 प्लस 2,600 प्लस 3,400 वापस एक बार टोटल करते हैं कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो फिर बाद में टैली नहीं हुआ तो तकलीफ होगा। 4,100 प्लस 2,000 प्लस 3,700 प्लस 5,200 प्लस 5,000 प्लस 2,536 प्लस 1,980। चलो बराबर है 35,316 और 99,000 से उसको माइनस करना है। सो द बैलेंस इज गोइंग टू बी, कितना आ रहा है बैलेंस? बैलेंस आ रहा है 66,000, सॉरी 66 नहीं 60। बैलेंस इज गोइंग टू बी 63,684. This is going to be your net profit. Now Desha, I don't have a space to write net profit over here. और नेट प्रॉफिट को याद है आपको दो पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। मुझे इधर जगह नहीं है लिखने के लिए, सो यू हैव टू राइट इट इन योर बुक्स। अभी आपको आता है नेट प्रॉफिट लिखने के लिए, सो यू हैव टू राइट नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करना है उसे, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन टू पार्टनर्स, और टोटल अमाउंट आना चाहिए 63,684 का। आई होप दैट्स क्लियर। डिवीजन करने का काम हम कर रहे हैं। लेट अस डिवाइड नेट प्रॉफिट अमंग टू पार्टनर्स। सो पहला किसको मिलेगा? मितेश, and then we have Mangesh. ठीक है, so for Mitesh it will be 63,684 and Mangesh के लिए भी 63,684। ये प्रॉफिट दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो रेशियो में होगा। एंड लेट अस चेक द रेशियो। सर रेशियो इज 3:2 ना, देखो यहाँ पे दिया है 3:2। So चलो 3:2 is the ratio. So let's write down the ratio. यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ 3:2, सॉरी 3:1, मैं 3:1 बोल रहा हूँ। 3:2 है तो 3 जाएगा मितेश को, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे? टोटल इज 4 एंड 1 जाएगा मंगेश को, डिवाइड करेंगे 4 से। एग्जैक्टली। तो आपको मैंने पहले बोला था हाउ टू कैलकुलेट। सबसे पहले डिवीजन करना है, सबसे पहला इनको 4 से डिवाइड करना है। एग्जैक्टली। सो पहला काम है 4 से डिवाइड करना। सो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 3 कैरी, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 and 4 1 जा। Is that clear? So dear student, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 15,921। So here also 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। So कट करता हूं, 15,000 वही सेम आएगा, 921। तो इधर देखो इंटू 1 करना है, तो इंटू 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा 15,921। Is that clear? बट इधर इंटू 3 करना है। So let us multiply this with 3 और इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 7 2 carry, 47, 7, 6, 15 7, 16 3, 17, 7 1 carry, 3 1 जा 3 plus 1 4. So this is going to be 47,000. 47,763. So 47,763 and 15,921 ये दोनों पार्टनर्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे डिवीजन आप लोग कर लेना। ये मुझे यहाँ पे जगह नहीं है तो आप डिवीजन कर लेना यहाँ पे।
एक का आएगा 47,763, ये डेबिट में लिखना है आपको, तो आप आपके बुक्स में डेबिट में लिख लेना। और दूसरे का कितना हमने कैलकुलेट किया था, 15,921, 15,921 ये आएगा दूसरे पार्टनर का। सो ये लिख लेना। एंड आई एम राइटिंग द सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, सीधा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट द सेकंड इफेक्ट फॉर दिस बाय नेट प्रॉफिट। आप लोग डिवीजन कर लेना पीएनएल के डेबिट में, और हम उसको नेट प्रॉफिट को करंट अकाउंट में लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में। सो 47,763 एंड नेक्स्ट पार्टनर 15,921। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड देन वी आर टोटलिंग दिस। अब टोटल करेंगे तो देखो क्रेडिट ही ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट का टोटल करते हैं पहला। सो 2,000 प्लस 1,250 प्लस 990 प्लस 15,921, so that's going to be 20,161 मंगेश के लिए। Let us calculate it for Mitesh. So 3,000 plus 3,750 plus 990 plus 47,763. So that's going to be 55,503. Is that clear? We are going to write the same value over here, 55,503 and 20,161. Clear? अब ये 55,503 में से कितना लेस करना है, तो डेबिट साइड में यहाँ पे 1,200 है, तो 1,200 लेस करके कितना आ रहा है चेक करते हैं। चलो, सो माइनस 1,200 करेंगे तो कितना आएगा, 54,303। दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर फॉर मितेश, फाइनल बैलेंस। और यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा है, सो टोटल आ रहा है 2,200 प्लस 900, तो वो आ रहा है 3,100। सो यहाँ पे 20,161 में से 3,100 माइनस करना है। 20,161 में से 3,100 माइनस करें तो कितना आएगा, सो यहाँ पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर एज फार एज मंगेश इज कंसर्न इज 17,061। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर फॉर मंगेश के ऊपर भी सर्कल करो। एंड ये व्हाट वी आर गोइंग टू राइट टू बैलेंस carried down. So we are going to write to balance carried down, और इसको हम carried down करके कहां पे लेंगे, we are going to take it to, हम लोग यहाँ पे बैलेंस आया, ये बैलेंस को हम उठा के हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस को हम लायबिलिटी साइड में लिखने वाले हैं। So let us write it down in the on the liability side, partners current account, Mitesh and Mangesh। ठीक है, मितेश का कितना हमने कैलकुलेट किया, फॉर मितेश इट इज 54,303, फॉर मंगेश इट इज 17,061। ठीक है, दोनों को हम टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। तो दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाते हैं। So I think the amount is going to be, कितना आया अमाउंट, 71,364। क्लियर? चलो अब इनका टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का पहला टोटल कर रहा हूं, प्लस 2,000 प्लस 18 प्लस 1,000। सो लायबिलिटी साइड का मुझे टोटल आ रहा है 3,30,364। एंड लेट्स चेक, 46,500 प्लस 60,800 प्लस 32,000 प्लस 13,700 प्लस 49,664 प्लस 75,000 प्लस 29,000 plus 23,700. So the total is going to come as 3,30,364. I hope this is clear. Okay, that is starting. Clear with this? Yes. This is tallying at 3,30,000.
364